Now, today we'll be dealing with the nuances that are contained in dying declaration. So, the first case in point that I would like to tell you is Patel Hiralal Joitaram versus State of Gujarat. It was decided on 18th October 2001. Now, in this case, I will tell you the facts in short. What happened was that the appellant developed some affair with the sister of Asha Ben, which the deceased resented for her own reasons. The name of the sister was Sharda, and the name of the deceased was Asha Ben. Of course, the name of the appellant is Patel Hiralal Joitaram. One day, when she was proceeding to a particular place, the appellant who was on scooter met her and then asked her that was she spreading canard that he and Sharda Bain had illicit relationship. Now, word in point, canard. Canard means an unfounded rumor or story. After this, there was an altercation between the deceased and the appellant. Then what did the appellant do? Appellant poured kerosene on her and lighted her on fire. The unfortunate woman was transformed into an anthropoid inferno. She was screaming, yelling, and scampered towards a water flow. After that, the fire was extinguished because she reached the water column situated near the railway station, and the water from that spot eventually extinguished the flame and embers which enwrapped her, but she was blistered with substantial burns. Some of the sadhus and pedestrians asked her as to what happened. She gave the first statement that the first statement that she gave to sadhus was that that the Hiralal has actually attacked her. After a while, she gave this statement to husband, and the first statement, as regards to the dying declaration, was given to the executive magistrate. All right. Now, in this case, there was one problem. The problem primarily was that before the investigation officer and in the FIR, she by mistake mentioned the name Hiralal Lalchand rather than Hiralal Joitaram, and she clarified her mistake in the statements that were contained under section that were recorded under section 161 of CRPC. So what in effect she was saying कि मैंने गलती से हीरालाल लालचंद का नाम ले लिया है, एक्चुअल नाम है हीरालाल जोइताराम. सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्लैरिफिकेशन था जो 161 ऑफ द सीआरपीसी के स्टेटमेंट में दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वुड फॉल विद इन द एम्बेट ऑफ सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है. अब इसके लिए उन्होंने फिर अर्लियर अथॉरिटीज़ कोर्ट की. मैं आपको बताता हूँ क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो प्रोविज़न है डाइंग डिक्लेरेशन का, it relates to the statement made by a person before his death. अब two categories of statement are made admissible in evidence and further made as substantive evidence. First, his statement as to the cause of his death. Secondly, his statement as to any of the circumstances of the transaction that resulted in his death. The second category can envelop a far wider amplitude than the first category. When the word circumstances is linked to transaction which resulted in his death, the subsection casts the net in a very wide dimension. Anything which has the nexus with death, proximate or distance, direct or indirect, can also fall within the purview of this subsection. As the possibility of getting the maker of the statement in flesh and blood has been closed once and for all, the endeavor should be how to include the statement of a dead person within the sweep of the subsection, and not how to exclude it therefrom. Admissibility is the first step, and once it is admitted, the court has to consider how far is it reliable. Once the test of reliability is found positive, the court has to consider the utility of that statement in a particular statement. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कोट करते हुए कहा कि जो टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी है उसको लिटरली कंस्ट्रू ना करें, क्योंकि उसको बोला जाता है ना कि डेथ से और जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसका एक प्रॉक्सिमेट कनेक्शन होना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको लिटरली ऐसे भी कंस्ट्रू ना करें कि इट लीड्स टू एब्सर्ड रिजल्ट्स. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया वाइल कोटिंग द रेशियो ऑफ शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र that the test of proximity cannot be too literally construed
and practically reduced to a cut and dried formula of universal application so as to be confined in a straitjacket. Distance to time would depend or vary with the circumstances of each case. Sometimes statements relevant to or furnishing an immediate motive may also be admissible as being part of the transaction of death. It is manifest that all these statements come to light only after death of the deceased who speaks from death. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट कोट किया, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये आपने रेस जस्टिस के कंटेक्स्ट में भी पढ़ा होगा. तो इसको भी कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इट इज एनफ इफ द वर्ड स्पोकन बाय द डिसीज्ड हैव अ रेफरेंस टू एनी सर्कमस्टेंसेस विच हैज कनेक्शन विद एनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस विच एंडेड अप इन डेथ ऑफ द डिसीज्ड. Such a statement would also fall within the purview of Section 32, subsection 1 of the Indian Evidence Act. In other words, it is not necessary that such circumstances should be proximate, for even distant circumstances can become admissible under subsection provided it has nexus with the transaction which resulted in the death. अब ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन जजमेंट्स ने क्या किया है कि जो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि सर्कमस्टेंसेस मस्ट हैव अ प्रॉक्सिमेट रिलेशन टू द एक्चुअल ऑकरेंस, उसी को एलैबोरेट किया है. ठीक है, अगर आप सिर्फ पाकला नारायण स्वामी पढ़ें तो आपके दिमाग में थोड़ा ये डाउट रह सकता है कि जो सर्कमस्टेंसेस और ट्रांजैक्शन है ये उतना वाइड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. लेकिन व्हेन यू रीड इट इन कंटेक्स्ट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन यू फाइंड कि ये कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, या इसकी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, या इसका लिटरल कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना है. सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है ये प्रॉक्सिमेट कनेक्शन या नेक्सस विद ट्रांजैक्शन है या नहीं, ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस में पता चलेगा. ठीक है, सो जब भी आप पाकला नारायण स्वामी कोट कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन पटेल हीरालाल जोईताराम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के भी कोट करेगा. दैट वुड मेक योर आंसर वेरी कंप्लीट व्हेन यू आर एलैबोरेटिंग कि जो सेकंड पॉइंट है डाइंग डिक्लेरेशन का, स्टेटमेंट एज टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, इसका स्कोप क्या है. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको काफ़ी वाइडर कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया है और बोला है कि एनीथिंग विच हैज़ द नेक्सस विद डेथ, प्रॉक्सिमेट और डिस्टेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, can also fall within the purview of this section, as the possibility of getting the maker of the statement in flesh and blood has been closed once and for all. इस कंक्लूजन में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शरद बिरजी चरण शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और आपका रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश दोनों पे रिलाई किया था. अब एक नेक्स्ट पॉइंट से डील करता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मान लीजिए जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक लैंग्वेज में दिया गया है और रिकॉर्ड किया गया है दूसरी लैंग्वेज में, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन. ये क्वेश्चन डीजीएस में भी आया है और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसे तो शायद एडमिसिबल ही ना हो. ऐसा नहीं है, ये डाउट्स अपने दिमाग से हटा दीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं है. ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होता है, रिलायबिलिटी कितनी होगी ये सवाल आपको लगाना है. ठीक है, आपको हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा ऑन द पॉइंट ऑफ एडमिसिबिलिटी. ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है जनरली कि भाई जब कोई प्रोसीजर ही नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने का, तो एडमिसिबल तो वो होगा वंस इट इज प्रूव दैट दैट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन एंड द पर्सन हु हैज डिक्लेयर्ड इज डेड. ये भी प्रूव करना ज़रूरी होता है. ये मत सोचिएगा कि आदमी जिंदा है और डाइंग डिक्लेरेशन सीधे प्रोसिक्यूशन ने कह दिया तो कोर्ट एकदम मैकेनिकली एडमिट कर लेगा. नो, क्योंकि अगर आप 104 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो उसमें लिखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है इन ऑर्डर टू मेक दैट एविडेंस एडमिसिबल. उसका इलस्ट्रेशन ए देखिए, ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बी इज डेथ. पहले बी की डेथ प्रूव करिए, एक बार बी की डेथ प्रूव हो गई तब उसका स्टेटमेंट हम एडमिट कर लेंगे. ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उसकी क्या पोजीशन होती है, उस स्टेटमेंट की क्या पोजीशन होती है वेयर द डाइंग डिक्लेरेशन इज मेड इन वन लैंग्वेज एंड रिकॉर्डेड इन अनदर लैंग्वेज. अब इसमें पहले तो मुझे जनरल प्रिंसिपल बता लेने दीजिए दैट देयर इज नो डाउट दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड विच इज रिकॉर्डेड इन द वर्ड ऑफ द इंजर्ड पर्सन वुड बी अ बेस्ट एविडेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, बट if you look upon the judgment of Bakshish Singh versus State of Punjab, you would find that the apex court is very clear on this point that merely because
the very words uttered by the injured are not reproduced, then that would not be a reason to reject a dying declaration if the court is otherwise satisfied that a dying declaration as recorded correctly reproduces what was stated by the injured. Similarly, Supreme Court in Tehal Singh versus State of Punjab said that substance of dying declaration which is written in the words of the writer अटैचेस नो इन्फॉर्मिटी, उसमें कोई इन्फॉर्मिटी नहीं होती है. हालांकि ये जनरली माना जाता है कि भाई जो वर्ड्स डिसीज यूज़ कर रहा है वही वर्ड्स एज इट इज़ यूज़ करने चाहिए. लेकिन अगर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो नहीं भी हो पाता, एंड लेट अस सपोज यू आर द राइटर एंड यू आर रिकॉर्डिंग द सब्सटेंस ऑफ व्हाट शी इज सेइंग और व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है, व्हाट द डिक्लेरेंट इज सेइंग. सो इन दैट सिचुएशन ऐसा नहीं होगा कि आपका डाइंग डिक्लेरेशन, जो आपने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया डिसीज का, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा. नो, दैट वुडंट बी इनएडमिसिबल. ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोर्ट जो है उसको ज़्यादा क्लोजली स्क्रूटनाइज करेगा, ये होगा. अब जैसे एक पॉइंट ले लीजिए, श्रीनिवासा वर्सेस स्टेट. इसमें जो डिक्लेरेंट था और जो पर्सन रिकॉर्ड कर रहा था डाइंग डिक्लेरेशन, उन दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग थी. द डाइंग डिक्लेरेशन वॉज देयर फॉर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर. The correctness of that translation was confirmed by the doctor who knew both the languages. ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन को पहले ट्रांसलेट किया जा रहा है फिर रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्डर की लैंग्वेज अलग है और जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसकी लैंग्वेज अलग है. इन दीज सर्कमस्टेंसेज एपेक्स कोर्ट ने बोला था कि वेरासिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन स्टैंड्स एस्टैब्लिश्ड. विशिएट नहीं किया, ये नहीं बोला कि नाउ डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ बीन रेंडर्ड इनएडमिसिबल और इट हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स वैल्यू. नो, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि अगर मान लीजिए रिकॉर्डर की लैंग्वेज अलग है, डिक्लेरेंट की लैंग्वेज अलग है, तो इन दैट सिचुएशन इफ it has been recorded in a different language with the help of the translator and it is certified by that translator who knew both the languages, in that situation the veracity of the dying declaration would stand established. So to summarize the law, I can simply say that the judgments that I have just mentioned before you, and if you read that, you will come to the conclusion that the exact words uttered by the injured need not always be reproduced. Even a translated version, if the same is found to be a correct version of the statement of the injured, can be acted upon in given cases. ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ. नाउ यू शुड नो कि जनरली क्या होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन लेने से पहले एक कॉम्पोजमेंटल सर्टिफिकेट लिया जाता है. ठीक है, कॉम्पोजमेंटल सर्टिफिकेट एक तरीके का रूल ऑफ प्रूडेंस है, जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन हु इज मेकिंग द स्टेटमेंट इज इन अ फिक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड. वो कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है ट्रॉमा की वजह से पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग एंड हेलुसिनेटिंग थिंग्स. तो जनरली ये होता है कि एक कॉम्पोजमेंटल सर्टिफिकेट लिया जाता है डॉक्टर से, और ये बात इंश्योर करने के लिए कि देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्यूटरिंग. इस पे एक केस बताता हूँ, वो है मुकेश वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, decided on 5th May 2017. इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि a dying declaration is an important piece of evidence if found veracious and voluntarily by the court can be the sole basis of conviction. If a dying declaration is found to be voluntarily and made in fit mental condition, it can be relied upon even without any corroboration. However, the court, while admitting a dying declaration, must be vigilant towards the need of a composed mental certificate and from a doctor as well as the absence of any kind of tutoring. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन के लिए लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उस पर रिलाई किया और बोला दैट द लॉ रिलेटिंग टू डाइंग डिक्लेरेशन वाज ससेंटली पुट इन द फॉलोइंग वर्ड्स. अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल और इन राइटिंग and any adequate method of communication, whether by words or signs or otherwise, will suffice, provided the indication is positive and definite. In most cases, however, such statements are made orally before death ensues and is reduced into writing by someone like a magistrate or a doctor or a police officer. When it is recorded, no oath is necessary, nor is the presence of magistrate absolutely necessary, although to assure authenticity, it is the usual practice to call a magistrate, if available, for recording the statement of a man about to die. There is no requirement of law that a dying declaration must necessarily be made to a magistrate,
and when such a statement is recorded by the magistrate, there is no specified statutory form for such recording. Consequently, what evidentiary value or weight has to be attached to such a statement necessarily depends on the fact and circumstances of each particular case. What is essentially required is that the person who records a dying declaration must be satisfied that deceased was in a fit state of mind. When it is proved by the testimony of a magistrate that the declarant was fit to make the statement even without examination by the doctor, the declaration can be acted upon provided the court ultimately holds the same to be voluntarily and truthful. A certification by the doctor is essentially a rule of caution, and therefore the voluntarily and truthful nature of the declaration can be established otherwise. आप दूसरे तरीके से भी उसको establish कर सकते हैं without the need of a compos mentis certificate by a doctor. Usually एक rule of prudence होता है, rule of practice होता है कि ले लेते हैं, नहीं भी लिया तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. अब नेक्स्ट केस इन पॉइंट बताता हूँ, वो है सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण, जो अभी मैंने बताया, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट, चेराजी शिवराज वर्सेस आंध्र प्रदेश को रेफ़र किया, 2 जजमेंट्स को रेफ़र किया और उन इश्यूज से डील किया कि जहाँ पे मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है और ये डिसाइड करना है कि किस पर, कौन से डिक्लेरेशन पे रिलाई करना है और किस पे नहीं. ठीक है. सो इन दीज 2 केसेस द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट with the issues arising out of multiple dying declaration and has gone to the extent of declining the first dying declaration and accepting the subsequent dying declaration. ठीक है, खासतौर से सुधाकर वर्सेस मध्य प्रदेश में. अच्छा, आपको मैं कल पहले ही बता चुका हूँ कि जनरली कोर्ट क्या करता है, जो फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसको थोड़ा प्रेसिडेंस देता है. लेकिन अगर कोर्ट इस बात को लेकर सेटिस्फाई हो गया, जो पहला स्टेटमेंट था दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग और इमेजिनेशन और दैट वाज नॉट वॉलंटरली गिवन, then in that situation it is open to the court to discard the first dying declaration and rely on the subsequent dying declaration. Now in Sudhakar versus Madhya Pradesh also, the court found that the first dying declaration was not made voluntarily and was not made by the free will of the deceased, and the second and the third dying declaration were voluntarily given and duly corroborated by the other prosecution witnesses and the medical evidence. In that case, the accused was married to the deceased, whom he set ablaze by pouring kerosene in the matrimonial house itself. The smoke arising from the house attracted the neighbors, who rushed the victim to the hospital, where she recorded 3 statements before dying. In her first statement was given to a Naib Tehsildar. She did not implicate her husband, but in the second and the third statement, which were also recorded on the same day, she clearly stated that the accused poured kerosene on her and set her on fire. The accused was then convicted under section 302 of the IPC. In this regard, the court made the following observation. I quote paragraph number 21 of this judgment. The Honorable Apex Court held, having referred to the law relating to dying declaration, we may now examine the issue in cases involving multiple dying declarations made by the deceased. Which of various dying declarations should be believed by the court, and what are the principles governing such determination? This becomes important where the multiple dying declarations made by the deceased are either contradictory or are at variance with each other to a large extent. The test of common prudence would be to first examine which of the dying declaration is corroborated by the other prosecution evidence. Pehla test. Further, the attendant circumstances, the condition of the deceased at the relevant time, the medical evidence, and the voluntariness and the genuineness of the statement made by the deceased, the physical and the mental fitness of the deceased, and the possibility of the deceased being tutored are some of the factors which would guide the exercise of the judicial discretion in the matters, in such matters. So these are the subsequent tests. Now we come to another point, that in a case there are 2 dying declarations given. One is more comprehensive than other. Let us suppose the first dying declaration that has been given is more comprehensive, and that is given to a police officer, and the later dying declaration is given to a judicial magistrate, but it lacks a certain bit of details. So what would be the position then? This question was answered in Sandeep and Ananda versus State of Haryana, where the Supreme Court was faced with a similar situation and said that the first dying declaration given to a police officer was more elaborate, and the subsequent dying declaration recorded by a judicial magistrate lacked certain information given earlier.
So after referring to the two dying declaration, the court examined that whether there was an inconsistency between the two dying declaration. After examining the contents of the two dying declaration, the court found that there was no inconsistencies between the two dying declaration. Then the court said that non-mentioning of certain features in a dying declaration recorded by the judicial magistrate does not make both the dying declarations incompatible. The next case in point that I'd like to talk about is Vijay Pal versus State Government Entity of Delhi, where the Supreme Court, after referring to the Constitution Bench judgment of Lakshman versus State and Babulal versus State, it succinctly laid down the position of law with regards to dying declaration. Supreme Court said that the law is quite clear that if a dying declaration is absolutely credible and nothing is brought on record that the deceased was in such condition that he or she could not have made a dying declaration to a witness, then there is no justification to discard the same. In the instant case, Vijay Pal versus State, what happened was that the prosecution witness 1 had immediately rushed to the house of the deceased, and she had told him before dying that her husband poured kerosene on her. The plea was taken by the appellant that he was being falsely implicated because his money was deposited with the in-laws and they were not inclined to return. Now, the Supreme Court on this contention said that the contention does not even breathe the truth, for there is not even a suggestion to that effect, neither by the record nor by the evidence adduced by the defense. So, in that situation, the Supreme Court declined the plea of the defense counsel. Similarly, in Mafa Bhai, Nagar Bhai Rawal versus State of Gujarat, the Supreme Court dealt with a case where the question arose with respect to a person suffering from 99% burn injuries could be deemed capable enough to make a dying declaration. 99% burn injuries. The trial judge thought that the same was not at all possible and the victim has gone into a shock after receiving such high burn injuries. And the trial judge opined that the moment the deceased has seen the flame, she was likely to have sustained the mental shock. Now, the development of such shock from the very beginning was the ground on which the trial court has disbelieved the medical evidence available. Now, the Supreme Court held that the doctor who had conducted her post-mortem was a competent person and had deposed in this respect. Deposed ka matlab formally came before court and testified. Therefore, unless there existed some inherent and apparent defect in the dying declaration, the court could not have substituted its opinion for that of the doctor. Hence, in the light of the fact of the case, the dying declaration made was found by Apex Court to be worthy of reliance, and the same has been made truthfully and voluntarily. There was no evidence on the record to suggest that the victim had provided a tutored version, and the argument of the defense stating that the condition of the deceased was so serious that she could not have made such a statement was not accepted, and the dying declarations were relied upon by the court. Similarly, in state of MP versus Dal Singh, a victim has suffered 100% burn injuries and she gave a dying declaration that was found to be credible. अब आता है क्वेश्चन कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन जेस्चर से दिया जा सकता है. तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में क्या हुआ था. इफ़ यू रिमेंबर, अक्यूज पर्सन ने गर्दन काट दी थी उसकी, क्या कहते हैं, विक्टिम की, एंड ड्यू टू दैट शी वाज अनेबल टू स्पीक बट शी मेड सर्टेन जेस्चर्स. सो इन दैट सिचुएशन द जेस्चर्स एंड द नॉट दैट शी मेड was treated as a dying declaration, but that was not relevant as a conduct. मैंने आपको conduct के context में जजमेंट भी बताया था. dying declaration पे भी अथॉरिटी है, ये जेस्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके है. अब कब तक आप ये सोचेंगे कि देखिए क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला तो 1885 का जजमेंट है. एक लेटेस्ट जजमेंट भी आपको देता हूँ, 2017 का है. ये भी मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली है. अब इसमें क्या हुआ था, जो तीसरा डाइंग डिक्लेरेशन था ना इस केस में, दैट वॉज मेड बाय द डिसीज्ड थ्रू जेस्चर से दिया गया था. तो ये लेटेस्ट केस है. जब भी आप क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला मेंशन करें और क्वेश्चन ये हो कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन जेस्चर से दिया जा सकता है, मेंशन दिस जजमेंट ऑल्सो, मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली.
तो इसमें एक कंटेंशन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने दैट द थर्ड डाइंग डिक्लेरेशन विच वॉज मेड थ्रू जेस्चर्स लैक्स क्रेडिबिलिटी एंड दैट द सेम ऑट टू हैव बीन वीडियोग्राफ्ड. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इज टोटली विदाउट सब्सटेंस. ठीक है, this argument is totally without substance that a dying declaration made through gestures would lack credibility and should be videographed. Supreme Court said that the dying declaration recorded on the basis of nods and gesture is not only admissible but also possesses the evidentiary value and the extent of which shall depend upon the recorded statement. Appreciating the third dying declaration recorded on the basis of gestures, nods, and writings on the basis of the aforesaid pronouncement, we have no hesitation in holding that a dying declaration made through signs, gestures, and nods are admissible as evidence if proper care was taken at the time of recording the statement. The only caution that the court ought to take is that the person recording the dying declaration is able to notice correctly as to what the declarant means by answering by the gestures or nods. In the present case, this caution was aptly taken as the person who recorded the prosecutrix dying declaration was a metropolitan magistrate and he was satisfied himself as regards to the mental alertness and the fitness of the prosecutrix and recorded the dying declaration of the prosecutrix by noticing her gestures and by her own writings. वैसे ही मीसला रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी अपेक्स कोर्ट एडमिटेड डाइंग डिक्लेरेशन मेड थ्रू जेस्चर्स और बोला दैट डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉड्स एंड जेस्चर इज नॉट ओनली एडमिसिबल बट possesses evidentiary value and the extent of which shall depend upon who recorded the statement, what is his educational attainment, what gestures and nods were made, and what the questions were asked, whether they were simple or complicated, and how effective or understandable the nods and gesture were. नेक्स्ट केस इन पॉइंट बताता हूँ, बी शशिकला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये भी इसी पे है, नॉड्स एंड जेस्चर्स पे. अब इसमें पैराग्राफ 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जजमेंट का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस 8 इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एज रिगार्ड्स टू द मैनर इन विच ही रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस 4. It is also evident that he also has the knowledge of Hindi, although he may not be able to read and write or speak in the said language. His evidence also shows that he has taken all precautions and care while recording the statement. Furthermore, he had opportunity of recording the statement of the deceased upon noticing her gestures. The court, in a situation of this nature, is also entitled to take into consideration the circumstances which were prevailing at the time of recording the statement of the deceased. अब जेस्चर्स वाले पॉइंट पे मैं आपको बोलूँगा कि लोकस क्लासिकस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला ज़रूर मेंशन करें, मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली मेंशन करें, और मीसला रामकृष्णन का रेशियो मेंशन कर दें. केस का नाम मत उतना याद रखिएगा, अगर याद नहीं हो रहा है प्रिंसिपल याद रखिएगा. प्रिंसिपल याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम याद करना केस लॉ का बहुत सेकेंडरी है. एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है जनरली प्रिकॉशन बहुत लेता है ये देखने के लिए कि जो मेंटल स्टेट है मेकर की ऑफ सच डाइंग डिक्लेरेशन वो कहीं इम्पेयर्ड ना हो. क्योंकि अगर वो कोर्ट को डाउट हो गया कि मेंटल स्टेट जो मेकर की थी डाइंग डिक्लेरेशन के वो इम्पेयर्ड थी, या ही वॉज ट्यूटर्ड, या ही वॉज नॉट इन अ फिट मेंटल और फिजिकल स्टेट टू मेक सच स्टेटमेंट, तो इन एब्सेंस ऑफ करॉबोरेशन कोर्ट फिर जनरली उस पर ज़्यादा रिलायंस नहीं प्लेस करेगा. इस पर आप लक्ष्मी वर्सेस ओम प्रकाश का रेशियो देख सकते हैं जो रिपोर्ट हुआ था AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2383. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द कैपेसिटी ऑफ द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट टू नरेट द फैक्ट्स वाज इम्पेयर्ड, और इफ द कोर्ट entertains grave doubts regarding whether the deceased was in a fit physical and mental state to make such statement, and the court may, in the absence of corroborating evidence lending assurance to the contents of the declaration, might refuse to act on it. और आपको पता है उसके लिए क्या होता है, कॉम्पोज मेंटिस सर्टिफिकेट होता है. अब कॉम्पोज मेंटिस सर्टिफिकेट भी आप जानते हैं, इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ, इट इज़ जस्ट अ रूल ऑफ प्रूडेंस. तो कहीं कहीं पे नहीं भी हुआ तो भी काम चल सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज अदर एविडेंस विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सर्कमस्टांसेस और बाय डायरेक्ट एविडेंस दैट द डिक्लेरेंट वाज इन अ फिट मेंटल और फिजिकल स्टेट टू मेक सच स्टेटमेंट. अब इसमें मैं आपको मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का पॉइंट बता चुका हूँ. गोविंदप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी यही बात कुछ हद तक बोली गई थी, और उसमें यह बोला गया था कि द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वाइल रिकॉर्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन डिड नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द डिसीज्ड.
The court then held that such a circumstance by itself is not sufficient to discard the dying declaration. Certification by a doctor regarding the fit state of mind of the deceased for the purpose of giving dying declaration is essentially a rule of caution, and therefore the voluntarily and the truthful nature of such declaration may also be established otherwise. सिमिलर पॉइंट था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस ज्ञान कौर में, ठीक है. इसमें एक इशू ये हुआ कि जो थंब इम्प्रेशन था डिसीज्ड का दैट अपीयर्ड ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन, उसमें क्लियर रिजेस एंड कर्व्स थे. अब दिक्कत ये थी कि द वुमेन्स थंब एंड हर बॉडी इन जनरल हैड बीन कम्प्लीटली बर्न्ड. तो ऐसे में रिजेस और कर्व्स कैसे आ गए? ये मेन ट्रायल कोर्ट का ऑब्जेक्शन था. डॉक्टर से जब पूछा तो डॉक्टर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन कि ये रिजेस और कर्व्स कैसे आए व्हेन द स्किन ऑफ द थंब वाज कंप्लीटली बर्न्ड. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टेक्निकलिटीज़ पे गौर करने से अच्छा है कि हम इस बात पे ज़्यादा गौर करें कि डाइंग डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है. So the person who records dying declaration must be satisfied that the maker is in a fit state of mind and is capable of making such statement. Moreover, requirement of a certificate provided by a doctor in respect of such deceased is not essential in every case. लेकिन इस केस में क्या हो गया था ना, इस केस में हाई कोर्ट ने भी डाउट इंटरटेन किया था क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में इनहेरेंट इनकन्सिस्टेंसीज भी थी इसमें. तो कोर्ट को इस केस में लगा नहीं कि दैट इज़ अ फिट केस टू रिलाई on such a dying declaration alone, and there was absence of circumstances also. तो यहाँ पे तो जो अक्यूज पर्सन थे उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल गया था इस केस में. ध्यान रखिएगा इस केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस ज्ञान कौर. ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नहीं है, वो सुसाइड पे अपने में अथॉरिटी है, ठीक है. कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, नाम इधर उधर मत कर दीजिएगा. इस केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस ज्ञान कौर, नॉट ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में स्टेट ऑफ पंजाब अपील पे गई थी, ठीक है. अब एक नेक्स्ट केस से डील करता हूँ. इस केस का नाम है सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब इसमें फैक्ट्स क्या थे? इन दिस केस देयर वाज अ स्कूल टीचर एज्ड अबाउट 20 years एंड शी वाज allegedly raped by the headmaster and a co-teacher. The prosecutrix narrated the incidents to her mother, brother, and uncle 2 to 3 days later, and 2 to 3 days later to her father. The matter was then reported to police after 11 days, and she narrated the whole incidents to the police and explained the delay for not lodging the report earlier. The doctor who examined the prosecutrix reported that she has been subjected to sexual intercourse in the recent past. अब ये कोर्ट के सामने डिक्लेयर किया गया. डॉक्टर ने जब ओपिनियन दिया अपना तो ही सेड दैट द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड शी हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द रिसेंट पास्ट. अब ये होता है कोर्ट के अंदर. तो सिंस द कोर्ट वॉज ओपन द प्रोसिक्यूट्रिक्स वॉज अनेबल टू विथस्टैंड सच ह्यूमिलिएशन ऑफ रेप एंड शी कमिटेड सुसाइड. एंड हाउ डिड शी कमिट सुसाइड? शी कंज्यूम्ड पॉइजन. A prosecution tried to make the statement which was given by the prosecutrix to the police as a dying declaration. What the prosecution tried to do is make the statements that was given to the police as a dying declaration. अब हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पहले लॉ की पोजीशन बताई, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. Supreme Court then again reiterated the old law on the topic and said that the circumstances must have a proximate relation to the actual occurrence, and they can only include the acts done when and where the death was caused. Thus, a statement merely suggesting motive for a crime cannot be admitted in evidence unless it is so intimately connected with the transaction itself as to be a circumstances of the transaction. In the instant case, the evidence has been led about statements made by the deceased long before the incidents which may suggest a motive for a crime. Thus, reviewing the authorities with regard to section 32 subsection 1 of the Indian Evidence Act, the following proposition emerge. Pehla, section 32 is an exception to the hearsay rule and makes admissible the statement of a person who dies, whether the death is a homicide or suicide, provided the statement relates to the cause of death or exhibits circumstances
leading to the death. In this respect, as indicated above, Indian Evidence Act, in view of the peculiar conditions of our society and to the diverse nature and character of our people, has thought necessary to widen the sphere of Section 32 to avoid injustice. अब इसमें आपको क्या पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि चाहे डेथ होमिसाइड हो या सुसाइड हो, वो डाइंग डिक्लेरेशन में आएगी प्रोवाइडेड द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ. सेकेंडली, the test of proximity cannot be too literally construed and practically reduced to a cut and dried formula as to universal application confined in straitjacket. Distance of time would depend or vary with the circumstances of each case. For instance, where death is a logical culmination of a continuous drama, long in process, and is, as it were, a finale to the story, the statement regarding each step directly connected with the end of the drama would be admissible because the entire statement would have to be read as an organic whole and not torn from the context. Sometimes, statement relevant to or furnishing an immediate motive may also be admissible as a part of the transaction of death. It is manifest that all these statements come to light only after death of the deceased who speaks from death. For instance, where the death takes place within a very short time of marriage or distance of time is not spread over more than 3 to 4 months, the statement may be admissible under Section 32. Third point that the Supreme Court said in this case, that the second part of clause 1 of Section 32 is yet another exception to the rule that in criminal law, evidence of a person who was not being subjected to or given an opportunity of being cross-examined by the accused would be valueless because the place of cross-examination is taken by the solemnity and the sanctity of oath, for the simple reason that a person on the verge of death is not likely to make a false statement unless there is strong evidence to show that the statement was secured either by prompting or tutoring. Fourth point that the Supreme Court mentioned, that it is important to note that Section 32 does not speak of homicide alone but includes suicide also. Hence, all circumstances which may be relevant to prove a case of homicide would be equally relevant to prove a case of suicide. Fifth point that the Supreme Court mentioned was that where the main evidence of the statements and letters written by the deceased, which are directly connected with or related to her death, and which reveal a telltale story, the said statement would clearly fall within the four corners of Section 32 and therefore admissible. The distance of time alone in such cases would not make the statement irrelevant. ये principle reiterate किए. But what did the Supreme Court held in this case? इस केस के facts पे decision क्या दिया? Supreme Court ने कहा कि there is no legal evidence on the record that the prosecutrix at or about time of making the statement had disclosed her mind for committing suicide allegedly on account of humiliation to which she was subjected to on account of rape committed on her person. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो आप एज अ प्रोसिक्यूशन बोल रहे हैं कि उसकी सुसाइड का कॉज ये था, ये तो कहीं भी प्रोसिक्यूट्रिक्स ने नहीं बताया कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ हर डेथ या सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये तो प्रिज्यूम करके आप चल रहे हैं. फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द प्रोसिक्यूशन एविडेंस डज नॉट इवन डिस्क्लोज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज्ड. द सर्कमस्टेंसेस स्टेटेड do not suggest that the person making such a statement under normal circumstances would commit suicide after more than 5.5 months. The High Court was therefore not justified in relying on exhibit of prosecution number 59 as a dying declaration holding that the said statement was in series of circumstances of transaction which resulted in death of the deceased. The conviction of the persons accused of offences cannot be based on conjunctions and suspicion. The statement that was produced before the court as an exhibit number P59, if not treated as a dying declaration, there is no cogent and reliable evidence which can connect the accused with the commission of a crime. In that event, other arguments advanced on behalf of the appellant assume importance. अब appellants के क्या argument थे? Appellants ने बोला other circumstances such as delay in lodging the FIR, medical examination of the prosecutrix, non-examination of the material witnesses and turning hostile of witnesses, including
two most important prosecution witnesses are also required to be taken note of. Then the Supreme Court said it is also to be kept in mind that after the incident on 9th July 1994, the prosecutrix is shown to have attended the school on 10th and 11th July 1994 as well. Her mother in cross-examination also stated that Miss Rakhi has told her about the incident on 12th July 1994 at about 5 pm. Prosecution witness 3, the father of the prosecutrix, deposed in the court that Rakhi did not tell me on 17, 18, 19 July 1994 that she wanted to file a complaint. I did not ask Rakhi whether she wanted to file a complaint. I did not disclose before the police on 12th July 1994 that Rakhi told me that she wanted to file complaint. इन सारे सर्कमस्टांसेस को जब टोटलिटी में कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने बोला कि वी आर देयरफॉर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द अपेलेंट हैज कमिटेड फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन मिस राखी ऑन 9th July 1994 under the circumstances as is narrated in the exhibit P59. P का मतलब है prosecution, exhibit number 59 था, and relied upon by the courts below. Then the court says appellant cannot be convicted merely on a suspicion and conjectures, however strong they may be. Then the Supreme Court said in the absence of a charge under section 376 IPC being proved, the prosecution could not have asked for conviction of the appellant under section 306 of the IPC for the abetment of suicide, as according to the prosecution, it was the commission of rape on her person which resulted in suicide. Since if the cause of commission of suicide is not legally proved, the appellants cannot be held responsible for the abetment of the ultimate offence of suicide. Hence, the Supreme Court acquitted these two accused persons. अब आप सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के फैक्ट्स और रेशियो का ध्यान रखिएगा. कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये आएगा तब जब आप दिल्ली वैली में अपेयर करेंगे. बाकी किसी स्टेट में अगर आता है तो देख लीजिएगा, वरना आई डोंट थिंक दे आस्क यू इन सच अ डिटेल. वहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखिएगा. अब नेक्स्ट केस इन पॉइंट बताता हूँ, वो है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. अच्छा, ये लोकस क्लासिकस से जाना जाता है. अब जब कोरॉबरेशन वाला पॉइंट मेंशन करना हो ना आपको कभी भी, तो आप मैं चाहूँगा कि कौशल राव का रेशियो मेंशन करें. दैट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट. अब जनरली आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स ही मेंशन करने होंगे थियोरेटिकल स्टेट्स में, ठीक है. तो चाहे आप अदबीर कोट करें, चाहे आप कौशल राव कोट करें, बोथ वुड सफाइस. मैं कौशल राव में बताता हूँ हुआ क्या था, क्योंकि अक्सर इसके फैक्ट्स बुक्स में नहीं बताए जाते. अब कौशल राव में क्या हुआ था, दैट डिसीज्ड मेड 4 स्टेटमेंट्स एंड 4 डाइंग डिक्लेरेशंस वाज सेपरेट एंड आइडेंटिकल डिक्लेरेशंस. 4 अलग अलग डाइंग डिक्लेरेशंस थे और दोनों चारों सेपरेट थे और आइडेंटिकल थे. पहला डॉक्टर को दिया गया, दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर को दिया गया, तीसरा मैजिस्ट्रेट को दिया गया और चौथा अदर पर्सन्स को दिया गया. अब चारों ही डाइंग डिक्लेरेशन में एक बात थी, दैट द डिसीज्ड हैज़ बीन असॉल्टेड बाय कौशल एंड 1 other person. Now the question before the court was whether the accused could be convicted only on the basis of this declaration or the declaration needs corroboration. यही सवाल था. अब जैसे ही ये जो इशू है ना आपके सामने कि विल द डिक्लेरेशन नीड corroboration, मुझे तो लगता है आपको सुनते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये केस है 1958 में रिपोर्ट हुआ था, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 22 में. और इसमें बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस corroborated. और इसमें प्राइमरली मद्रास हाई कोर्ट का व्यू एज इट इज़ रीइटरेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने. Nonetheless, coming back to the point, second point इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया that the case must be determined on its own facts, keeping in view the circumstances in which the dying declaration was made. Third point that was held in this case was that it cannot be laid down as a general proposition that the dying declaration is a weaker kind of evidence than other pieces of evidence. Then the fourth point that was held was that the dying declaration stands on the same footing as another piece of evidence and has to be judged in the light of the surrounding circumstances with reference to the principles governing the weighing of evidences. Yeah, in other words, appreciation of evidences. Fifth is there's a dying declaration which has been recorded by a competent magistrate in proper manner, that is to say, in a form
of question and answers, and as far as practicable, in the words of the maker of the declaration, stands on much higher footing than a dying declaration, which depends upon the oral testimony which may suffer from infirmities of human memory and human character. And lastly, sixth point, that in order to test the reliability of a dying declaration, the court has to keep in view the circumstances like the opportunity of a dying man for observation, for example, whether there was sufficient light, if the crime was committed at night, and whether the capacity of the man to remember the facts stated has not been impaired at the time when he was making the statement. Another point that is to be kept in mind is the circumstances, and the dying declaration has to be considered throughout if there are several opportunities for making a dying declaration, and it is also to be proved at the earliest opportunity that the dying declaration has not been made because of the tutoring by the interested parties. तो एक लोकस क्लासिकस है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. कल जो मैंने अदबीर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में जो प्रिंसिपल्स बताए थे उसने सारे केसेस रेफर किए हुए थे, सारे के सारे. सो आई वुड रादर टेल यू कि जनरल प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखिए. अगर मेंशन ही करना है, जैसे अगर आप थियोरेटिकल स्टेट्स में पेपर दे रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तो वो लोकस क्लासिकस को पहचानते हैं क्योंकि एकेडमिशियंस देखते हैं. तो लोकस क्लासिकस मेंशन करने के बाद ही लेटेस्ट जजमेंट मेंशन करें, ठीक है. लेकिन अगर आप दिल्ली, हरियाणा या हिमाचल ये सारे देना चाहते हैं तो जनरल प्रिंसिपल्स और लेटेस्ट जजमेंट पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है. अब क्वेश्चन है, क्या डाइंग डिक्लेरेशन मेड टू अ पुलिस एडमिसिबल होगा या नहीं? आंसर इसका बहुत सा ऑब्वियस है, ऑफ कोर्स इट वुड बी एडमिसिबल, क्योंकि कहीं तो बाहर तो है नहीं, कहीं तो ऐसा तो लिखा नहीं कि पुलिस को आप डाइंग डिक्लेरेशन दे ही नहीं सकते, है ना. वरना ये तो कितनी रिडिकुलस सिचुएशन हो जाएगी अगर ऐसा स्टेटमेंट है कि आदमी मर रहा है और उसके सामने पुलिस वाला है और फिर लेजिस्लेचर ने कहते हैं नहीं आप पुलिस वाले को नहीं बता सकते, सॉरी, अब आप मर जाइए वो ज़्यादा ठीक है, बट पुलिस वाले को नहीं बता सकते. नाउ दैट वुड बी अ रिडिकुलस प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, और ऑफ कोर्स द लॉ इन इट्स विजडम हैज़ नॉट मेड इट अ पोजिशन. इस पे आप मेंशन कर सकते हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ. अब इसमें डाइंग डिक्लेरेशन 2 पुलिस पर्सनल को दिया गया था. अब सिचुएशन ये थी कि मैजिस्ट्रेट को भी बुलाया जा सकता था हॉस्पिटल में टू रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन, बट उसको बुलाया नहीं गया, ठीक है. ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मेयरली बिकॉज द डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ बिन रिकॉर्डेड बाय पुलिस पर्सनल, इसका मतलब ये नहीं कि डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू खराब हो जाती है. अब इस ऑब्जर्वेशन पे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स को कोट किया, भागीरथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और मुन्नू राजा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. भागीरथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ था कि अ पुलिस कांस्टेबल ऑन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम हॉस्पिटल दैट अ पर्सन विद अ गनशॉट इंजरी has been admitted, and in pursuance to that message a head constable rushed to the place after making entry in a police register, and after obtaining a certificate from the doctor about the condition of the injured, took his statement for the purpose of registering the case. It was held that the statement recorded by the head constable was admissible as a dying declaration. Similar view was taken in Munnu Raja versus State of Madhya Pradesh, wherein the statement made by the deceased to the investigation officer at the police station by the way of an FIR was recorded in writing, and then again was held to be admissible. आपको पता होना चाहिए FIR 161 के बयान, both of them are capable of being turned into dying declaration. फिर एक पॉइंट है, अगर मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड किया गया बट नैरेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया, कभी कभी क्या कहते हैं जो रिकॉर्डर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं वो डिसीज से पूछ लेते हैं कि ये चोटें कैसे लगी तुम्हारे, तो फिर डिसीज अपनी कहानी खुद बताता है. क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में नहीं होती हो तो नैरेटिव फॉर्म में उसको बोला जाता है. तो अगर नैरेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड हो गया है तो वो बहुत नेचुरल माना जाता है, ठीक है. इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. इनफैक्ट लेजिस्लेचर ने कहीं फॉर्म ही नहीं प्रिस्क्राइब किया है कि क्वेश्चन एंड आंसर में होना चाहिए या नैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है. जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेसेस का CRPC में बताया गया कि आप कैसे एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेसेस के एविडेंसेस की भी रिकॉर्डिंग में ये होता है कि अगर नैरेटिव फॉर्म में कर लिया गया या क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में कर लिया गया तो दैट बाय इटसेल्फ डज नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द टेस्टिमनी. वो पोजीशन ऑफ लॉ उधर भी है. वैसे ही डाइंग डिक्लेरेशन के लिए भी यही पोजीशन ऑफ लॉ है कि मियरली बिकॉज क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड हुआ डाइंग डिक्लेरेशन, नैरेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड हुआ, तो उससे डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती. In fact, such a statement would be termed as more natural and give the version of the incidents as has been perceived by the victim.
ये पोजीशन ऑफ लॉ बहुत ऑथॉरिटेटिवली राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डिसाइड हो चुकी थी, जिसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इट कैन नॉट बी सेड दैट अनलेस द डाइंग डिक्लेरेशन इज इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, because having regard to the sanctity attached to a dying declaration as it comes from the mouth of a dying person, though unlike the principle of English law, he need not be under the apprehension of death. It should be in actual form of the maker of the declaration. Generally, the dying declaration ought to be recorded in the form of questions and answers, but if a dying declaration is not elaborate but consists of only a few sentences and is actual words of the maker, the mere fact that it is not in question and answer form cannot be a ground against its acceptability and reliability. The mental condition of the maker of the declarant, alertness of mind and memory, and understanding of what he is saying are the matters which can be observed by any person. But to lend assurance to these factors, having regard to the importance of the dying declaration, the certificate of medical trait person is generally insisted upon as a rule of practice. अब आपको मैं कल ही बता चुका हूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन ब्रीफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता. यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. इट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन विच इज़ द डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया, बट इट इज़ द ट्रुथफुलनेस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन विच इज़ द डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया. ठीक है. अब एक केस बताता हूँ जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन पे रिलाई नहीं किया गया, क्योंकि अभी इतने केस बता दिए जिस पे रिलाई किया गया है. सो आई शुड ऑल्सो टेल यू द केसेस वेयर द रिलायंस वॉज नॉट प्लेस्ड. अब ये केस है किशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसे विलस्टेटिव केसेस सुनने भर के लिए AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3062. ठीक है. अब इसमें जो डाइंग डिक्लेरेशंस थे वो डिसीज ने मेक किए 2 months आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ बर्निंग. तो जो पहला ओरल जो डिक्लेरेशन था वो अपने रिलेटिव्स के सामने बोला. द डिसीज मेंशन द नेम्स ऑफ द एक्यूज पर्सन. और जो सेकेंड डाइंग डिक्लेरेशन था वो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया. ठीक है. And in that situation, the deceased could not mention the name of the accused on the ground that she could not recognize any of the accused because of the fire and the darkness coming to her eyes. So the second declaration before the magistrate was not only conflicting, but there was inter se discrepancies in the deposition of the witnesses given in the support of the oral dying declaration. अब relatives जो oral dying declaration दे रहे थे, जैसा कि वो बता रहे थे कि डिसीज ने उनके सामने दिया था, और जो स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ था उनमें डिस्प्यूट था, क्योंकि रिलेटिव्स बता रहे थे कि ओरल डाइंग डिक्लेरेशन में नाम लिए गए थे और मैजिस्ट्रेट के सामने कोई नाम नहीं लिया गया था. साथ में जो मेडिकल एविडेंस जो आया इस केस में, उसने भी ये दिखा दिया कि डिसीज डाइड ड्यू सम एलिमेंट्स एंड नॉट ड्यू टू बर्न इंजरीज. तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दीज सर्कमस्टेंसेस द कन्विक्शन कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सच कन्फ्लिक्टिंग डाइंग डिक्लेरेशंस. ठीक है. यहाँ पे कोई पोजीशन ऑफ लॉ की बात नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्स की बात है. पोजीशन ऑफ लॉ तो मैंने आपको बता दी कि कैसे ट्रीट करना है, कैसे सोचना है, और फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज में टोटलिटी ऑफ द एविडेंस के साथ उसे अप्रिशिएट किया जाता है. यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन ही कोर्ट को लग जाता है इट इज़ ट्रू, वॉलंटरली मेड एंड इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग एंड कैन बी रिलाइड अपॉन, तो बिना कॉरपोरेशन के इट कैन बिकम द सोल ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन, है ना. लेकिन कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए उस लेवल पे आने के लिए. एक पोजीशन ऑफ लॉ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे कोर्ट को डाइंग डिक्लेरेशन की क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो गया, ठीक है, क्रेडिबिलिटी कोर्ट ने डाउट करना शुरू कर दी, वहाँ से डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी. ठीक है. और जितना कोर्ट का बिलीव डाइंग डिक्लेरेशन से जाता जाएगा इट वुड बिकम दैट मच वीकर एविडेंस. ठीक है. एडमिसिबिलिटी पे कोई बार नहीं है, एडमिट तो होगा ही होगा, लेकिन रिलायंस आप उस पर कितना रखोगे, हाउ मच वेट इज टू बी अटैच टू दैट पर्टिकुलर डाइंग डिक्लेरेशन बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. ये फैक्ट सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे पता चलता है. ठीक है. अब इंटरसेट डिस्क्रिपेंसीज है डाइंग डिक्लेरेशन में, ऑन द रिकॉर्ड डिफेंस प्रूव कर देता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग, या ये बता देता है या प्रूव कर देता है कि डाइंग डिक्लेरेशन वाज नॉट मेड बाय द डिसीज्ड पर्सन. मेडिकल एविडेंस भी ये दिखाता है कि द डिसीज पर्सन वाज नॉट इन अ कॉम्पिटेंट स्टेट ऑफ माइंड टू मेक सच अ स्टेटमेंट, और भी टेस्टिमनीज आ जाती हैं उसके खिलाफ. तो ऐसे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाई नहीं किया जाएगा. लेकिन जहाँ पे कोर्ट को लगता है डाइंग डिक्लेरेशन वाज ट्रूथफुल, द मेकर ऑफ सच स्टेटमेंट वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड टू मेक इट, एंड द स्टेटमेंट वाज वॉलंटरली मेड विदाउट द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग, कोर्ट ऑब्वियसली वुड रिलाई ऑन इट, और तब वहाँ पे कॉरपोरेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी.
corroboration ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ रूल ऑफ प्रूडेंस इन दिस केस, नॉट अ रूल ऑफ लॉ. कभी कभी तो विदाउट corroboration डाइंग डिक्लेरेशन अलोन पे ही सेंटेंस हो सकता है. ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कॉम्पोज मेंटेस सर्टिफिकेट इज़ अ रूल ऑफ प्रैक्टिस, अ रूल ऑफ प्रूडेंस, नॉट अ रूल ऑफ लॉ. तो अगर मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है किसी डिक्लेरेंट का स्टेटमेंट, और वो डाइंग डिक्लेरेशन है लेट अस सपोज, और वो रिकॉर्ड कर रहा है एंड दी कॉम्पोज मेंटेस सर्टिफिकेट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड, बाद में मर जाता है मेकर ऑफ दैट स्टेटमेंट, तो फिर डिफेंस अगर ये ग्राउंड उठाता है ना कि कॉम्पोज मेंटेस सर्टिफिकेट नहीं ऑब्टेन किया गया था, हेंस डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी एडमिटेड और रिलाइड अपॉन, तो रिजेक्ट हो जाएगा. वो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर बाकी एविडेंसेस ये प्रूव कर रहे हैं कि द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डेड द डाइंग डिक्लेरेशन एज अ डिसइंटरेस्टेड विटनेस, एंड जो सर्कमस्टेंसेस थे और जो नेचर ऑफ द स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बाय इट सेल्फ दिखाते हैं कि द डिसीज वॉज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड टू मेक सच स्टेटमेंट्स, और बाकी के डायरेक्ट विटनेसेस भी इस बात को सपोर्ट करते हैं, देन द डाइंग डिक्लेरेशन कुड बी रिलाइड अपॉन. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कॉम्पोज मेंटेस सर्टिफिकेट इज जस्ट अ रूल ऑफ प्रूडेंस और रूल ऑफ प्रैक्टिस, नॉट अ रूल ऑफ लॉ. अब जल्दी जल्दी मैं आपके लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ. बुलेट पॉइंट्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन का क्या होगा मैं बता चुका हूँ कि लैंग्वेज जनरली जो डिक्लेरेंट है उसकी लैंग्वेज में होना चाहिए, डाइंग डिक्लेरेशन भी उसी की लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है. इट इज़ नॉट अ ग्राउंड विच विल रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ सच एविडेंस. ठीक है, provided that a dying declaration that has been recorded in a different language after translating the language of the declarant is true. Secondly, there is no form or procedure for recording a dying declaration. Then dying declaration can be recorded by any person, be it a police officer, magistrate, doctor, anyone. ठीक है, लेकिन जहाँ पे लेट अस सपोज डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट सारे लोग हैं और सिर्फ पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है डाइंग डिक्लेरेशन, वहाँ पे थोड़ा कोर्ट ये बोलेगा कि जब डॉक्टर था, मैजिस्ट्रेट था, वाई व्हाट वाज द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट बाय अ पुलिस ऑफिसर? यू कुड हैव रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट थ्रू द हेल्प ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और द डॉक्टर कुड हैव रिकॉर्डेड इट. अब ये एक क्या कहते हैं, ये एक बात ली जाती है जस्ट टू इंक्वायर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ओवर एक्टिव हो रहे हैं, ओवर जेलस हो रहे हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर कन्विक्शन. इसके लिए थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन बाय इटसेल्फ, कि मेयरली पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड कर लिया हैंस डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट रिलायबल, ऐसा कुछ नहीं है. अब एफआईआर में भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकते हैं. 161 में भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, 161 ऑफ द सीआरपीसी, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस. जनरली फॉर्म ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज इन अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म, बट नैरेटिव फॉर्म में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओरल डाइंग डिक्लेरेशन भी हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन वर्ड्स और जेस्चर से भी हो सकता है. अब जो ओरल डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें जो वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन होगी वो डिपेंड करेगी क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस पे. ठीक है, जो विटनेस ओरल डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि डाइंग डिक्लेरेशन की क्या वैल्यू होती है. ठीक है, इसके लिए अगर आपको कोई केस चाहिए देन यू कैन कोर्ट दर्शना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जब ओरल डाइंग डिक्लेरेशन होता है ना, जो विटनेसेस अपनी मेमोरी से बताते हैं, तो कोर्ट को ये होता है कि जो भी टेस्टिमनी दी जा रही है दैट शुड बी ट्रस्टवर्दी एंड फ्री फ्रॉम एवरी ब्लेमिश एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस. और ऐसे में जो वर्ड्स हैं ओरल डिक्लेरेशन के दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये कोर्ट इंसिस्ट करता है कि कोशिश करिए कि एज फार एज पॉसिबल अपनी मेमोरी से वही शब्द बताइए जो डिसीज ने यूज़ किए थे. अब मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने में डिले हो गया, तो ऐसे में क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे? देयर इज सब्सटेंशियल डिले इन रिकॉर्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन. दैट बाय इटसेल्फ विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. ऑल दैट इट इज अ ग्राउंड इज टू फर्दर स्क्रूटिनाइज द डाइंग डिक्लेरेशन. वैलिडिटी नहीं अफेक्ट करेंगे उसकी. अब एक सिचुएशन मान लिए जहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसमें जो रिकॉर्ड किया गया इसमें राइटिंग थोड़ी ब्लर हो गई है. ठीक है, आप जानते हैं क्रिमिनल ट्रायल्स में कितने साल चलते हैं, राइटिंग थोड़ी ब्लर हो गई है. मान लीजिए उसमें नाम लिखा है अक्यूज्ड का, कुछ लेटर्स थोड़े क्या कहते हैं पेन की इंक की वजह से या फॉर सम रीज़न और दी अदर थोड़े ब्लर हो गए, तो उस पर ओवर राइटिंग करके उन लेटर्स को वापस, उन जो स्टेटमेंट को है उसको वापस भरा गया है, जस्ट इन केस टू मेक श्योर कि कहीं जो वर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से इरेज ना हो जाए. उसमें फॉर्जरी नहीं की, उसमें कुछ एडिशन नहीं किया है, फॉल्स एविडेंस नहीं क्रिएट किया है, बस
वो जो राइटिंग होती है ना, कभी कभी वर्ड्स जो होते हैं चले जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उनको रिस्टोर करने के लिए आप उसको वैसे ही वापस ड्रॉ कर देते हैं. लेट अस सपोज नाम लिखा है अक्यूज का एक्स, अब एक्स इरेज हो रहा है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि एक्स पूरी तरीके से इरेज ना हो जाए, आप एक बार उसी एक्स के ऊपर एक अच्छे से एक्स बना देते हो पेन से. अब ये जो सिचुएशन आई थी ना, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आई थी. इसका साइटेशन हो गया प्रज्ञा सिन्हा, भरत सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2001 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 1327, बॉम्बे. तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि वेयर डाइंग डिक्लेरेशन इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, द कोर्ट सेड दैट इट इज इमटेरियल दैट द नेम्स ऑफ द अक्यूज पर्सन एज ओरिजिनली रिटन हैविंग बिकम ब्लर्ड वर मेड क्लियर्ड बाय ओवर राइटिंग. The declaration of this kind could not be thrown out merely because there was overwriting in respect of the names of the accused person. Though the declaration was recorded by the police officer, it inspired confidence. It could not be rejected for the fact that the corrections were not initialed by the signatory police officers. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डाइंग डिक्लेरेशंस डायरी में हो सकते हैं. मान लीजिए जो डिसीज्ड है वो अपनी डायरी में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है. कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन? द आंसर इज येस, इट कैन बी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. If it relates to the cause of his death or circumstances of transaction that resulted in his death, the statements in the diary can also be termed as dying declaration. ठीक है. इस पे अगर आप कोई पोजीशन ऑफ लॉ होल्ड करना चाहते हैं तो वह रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 17 अक्टूबर 2001, पर ज़रूरत नहीं है इसकी, इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी. अब एक सिचुएशन आती है कि अगर मान लीजिए कि पोस्टमार्टम डॉक्टर कह रहा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो इंजरी हुई है डिसीज्ड की बॉडी पे उससे वो अनकॉन्शियस होगा. और जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है जिसने डिसीज्ड को एग्जामिन किया लिटरली, वो कह रहा था कि डिसीज जो था उस वक्त कॉन्शियस था और उसने स्टेटमेंट बोला. तो जब यहाँ पे दोनों के बीच में अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो कोर्ट किसको बिलीव करेगा? उस डॉक्टर के बीच में डिस्क्रिपेंसी है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया और बोला कि इंजरी के वक्त अक्यूज कॉन्शियस था, और दूसरा पोस्टमार्टम डॉक्टर जो कह रहा है इंजरी के वक्त अक्यूज कॉन्शियस हो ही नहीं सकता क्योंकि इंजरी इतनी सीवियर थी कि ऑर्डिनरली जो लोग होते हैं वो कॉन्शियस नहीं रहते. तो वो विल कोर्ट बिलीव? द कोर्ट विल ऑब्वियसली बिलीव द डॉक्टर वो हैव विटनेस्ड द कंडीशन ऑफ द अक्यूज. पोस्टमार्टम डॉक्टर को नहीं बिलीव करेगा क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम डॉक्टर का जो ओपिनियन होगा वो प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस होता है, पर जो रिकॉर्डिंग डॉक्टर है डाइंग डिक्लेरेशन को जिसने रिकॉर्ड किया वो तो आई विटनेस भी है ना इंजरीज़ का, कि जो इंजरी हुई तो उसने वहाँ पे सीधे देखा कि यार डॉक्टर क्या कहते हैं डिसीज के ऊपर इतनी इंजरीज हैं एंड डिसीज वॉज कॉन्शियस. सो द कोर्ट विल मोर इंक्लाइन टू बिलीव द डॉक्टर वो रिकॉर्डेड द डाइंग डिक्लेरेशन एज अपोज टू द पोस्टमार्टम डॉक्टर, अनलेस एंड अनटिल it is established by the facts and circumstances कि the doctor recording dying declaration is clearly lying. ये अगर इस्टेब्लिश हो गया तो बात अलग है, वरना कोर्ट जनरली डॉक्टर रिकॉर्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन को बिलीव करेगा. अब शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो मैंने आपको वो लॉ पॉइंट बताया था उसमें भी यही पॉइंट था कि जो लेटर्स थे जो डिसीज ने लिखे थे अपने मरने से पहले, और उसमें कुछ ये ग्राउंड्स थे कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल कंडीशंस एट द हैंड्स ऑफ हर इन लॉज, एंड after writing those letters about 4 months thereafter she lost her life. So in that situation the defense sought to prove that the letters will not be treated as a dying declaration because there is no proximate nexus. अब उसका लॉ पॉइंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम का कोई कट एंड राइट फार्मूला नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू रीड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, दैट मेक्स द पॉइंट extremely wide, and the test of proximity of time cannot be literally construed to practically reduce it to a cut and dried formula of universal application. यहाँ पे जो previous letters थे they were admitted. ठीक है. हालांकि इस केस में जो appellant थे शरद बिरदी चंद शारदा, his guilt was not established beyond reasonable doubt and he was acquitted. क्योंकि आपको पता है अगर दो व्यू possible होते हैं, one proving the guilt of the accused and the other his innocence, so the court will always follow the view of his innocence. And if you remember correctly, मैंने शरद बिरदी चंद शारदा आपको circumstantial evidence के जनरल प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, और उसी पे बहुत अच्छी अथॉरिटी है. तो जब भी उसको कोट करें आप
क्या कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के पॉइंट भी आप हमेशा कोट करिएगा. इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है. तो प्राइमरली आपकी डाइंग डिक्लेरेशन की जितनी भी इश्यूज थे मैंने डील कर लिए. अब ज़्यादा कोई पॉइंट बचे नहीं. बस एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, वह नजम फारगी वर्सेस वेस्ट बंगाल का. इसमें जो डेक्लेरेंट था ही डाइड लॉन्ग आफ्टर मेकिंग द डाइंग डिक्लेरेशन. तो उसमें एक्यूज क्या कहते हैं डिफेंस ने ये साबित करने की कोशिश की रही थी कि वो इतने टाइम बाद मरा है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरली फॉर द फैक्ट दैट द पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम देन एक्सपेक्टेड वुड नॉट मेक द डाइंग डिक्लेरेशन इनएडमिसिबल. ठीक है. So that was the only point. I think there is nothing else left in talking about dying declaration. Most of the situations have been completed, and I think the law regarding dying declaration is totally complete now. आपको इस पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा. ध्यान रखिए द पोजिशन ऑफ द इंटायर लॉ ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ बीन समराइज्ड फॉर यू. ठीक है. सो इफ़ एनी डाउट यू हैव यू मेंशन इट टू मी. नोट्स स्टडी नोट्स में जितने भी केस मटेरियल साइटेड हैं उसको ढंग से पढ़िएगा जस्ट टू हैव कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एज टू द लॉ रिलेटिंग टू द डाइंग डिक्लेरेशन. अब फ्रॉम नेक्स्ट पॉइंट्स, अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स डील करेंगे आई थिंक वो बेटर ही होगा मैं टुमारो ही डील करूँ. तो उसमें क्या कहते हैं सिर्फ जानकारी वाली बात है, उसमें नोट्स वोट्स पढ़ने वाली बात नहीं. दे आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि किसी चीज़ में क्या आ रहा है. ठीक है. या 32 के सबसेक्शन 2 से लेके सेक्शन 44 तक देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ. वो अवेयरनेस के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से उतनी ज़रूरत भी नहीं है. सेक्शन 45 जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स है उसमें थोड़ा रेलेवेंसी के पॉइंट को लेके चीज़ें वेट अटैच करती हैं. और उसके बाद आई थिंक रेलेवेंसी के चैप्टर में फिर ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता. जो उसके बाद जो फिर चैप्टर आएगा वो होगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करने वाला. और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरली आपको ये समझना है कि उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है और उसके क्या नुआंसेस हैं. फिर 65B को आपको लेके बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आप एक मॉडर्न एरा में जी रहे हैं. और यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करने निकलेंगे या आगे फ्यूचर में जब आप क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे तब वो रिटन कंटेक्स्ट में कम पूछा जाएगा और हो सकता है ई फॉर्म में ज़्यादा पूछा जाए. तो उसको लेके थोड़ा एलैबोरेट करना है. वो एक बार ख़त्म हो गया तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं. सेकेंडरी एविडेंस पे फिर कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता. एंड देन फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है सेक्शन 91 और 92 और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ और सम ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक्स. तो डाइंग डिक्लेरेशन को अभी आप अच्छे से समझिएगा. जस्ट इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन और इन केस यू रिक्वायर सम क्लैरिफिकेशन feel free to ask me. And that is it for today. I'll see you tomorrow.